In this lecture, we are going to start with the matrix representation of Bezier curve and the limitation of Bezier curve. So, how to represent the Bezier curve in the form of matrix, that we are going to see. So, we can derive a matrix representation of a cubic Bezier curve using blending function representation as below. This is the blending function that we have already seen for the Bezier curve, that is P of t is equals to summation of I is equals to 0 to n pi Bezier of I comma n t, and t is range from 0 to 1. T is nothing but the number of parameters that we have to plot, or that we have to calculate from. Suppose this is the P1, P2, P3, P4. These are the control points, and this is the curve. And for this curve, we have to find out, we know the points of P1 and P4. Now we have to calculate the in-between points from this, right? So to calculate the in-between point from this, that parameter we have to consider as the t, and that will be range from 0 to 1. And this is the parameter, that is coordinate, that is x, y or whatever, right? And this is the function, Bezier curve function, right? So how to represent it? If you put I is equals to 0, now this is the four coordinate control points we require to form a cubic Bezier curve, right? So 4 coordinate we have to consider by putting the value of I is equals to 0, 1, 2, 3, right? And n is nothing but the degree of that curve, right? So P0 I की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसीडर की 0. सो यहाँ पे 0 रखते हैं तो P0 हो जाएगा बेस ऑफ I की वैल्यू 0, दैट इज़ 0. एंड दिस n गेट्स फिक्स्ड क्योंकि डिग्री कितनी है क्यूबिक कर्व की 3 है, राइट? प्लस I की वैल्यू अगर 1 करते हैं तो ये 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, सेम यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 3 आ जाएगा. क्लियर? नाउ ये हमने क्यूबिक कर्व के लिए कैलकुलेट किया था कि बेंजियर ऑफ 0,3 ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी क्यूब. ये हमने इस फॉर्मूले में रख के ही कैलकुलेट किया था. सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था वो बेंजियर ऑफ 0,3 t इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी क्यूब. 1 3 का भी कैलकुलेट किया, 2 3 का भी और 3 3 का भी. वो दैट वैल्यू वी हैव टू पुट इन दैट इक्वेशन. ओके, सो हमने क्या किए, वही वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट किए. क्लियर? और उसके बाद इसे सॉल्व किया. अभी क्यूब है तो उसका 1 माइनस टी क्यूब है, उसे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3t प्लस 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. इसे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसे सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, राइट? इसे अगर किया तो क्या होगा, इसका क्या होगा 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, राइट? और इसे अगर मल्टीप्लाई किया 3t से क्या होगा 3t माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब हो जाएगा P1. क्लियर? सेम यहाँ पे अभी 3t स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब मल्टीप्लाइड बाय P2 एंड t क्यूब P3. ठीक है? उसके बाद अभी क्या करेंगे, उसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P ऑफ t इज इक्वल्स टू टी क्यूब टी स्क्वायर t एंड 1. ये हमने देखा था, राइट? सो अभी P0, अभी ये जो कोऑर्डिनेट है P0 P1 P2 P3, उसके वैल्यूज़ हमें इसमें पुट करने हैं रो वाइज, राइट? सो P0 फर्स्ट क्या है टी क्यूब का, सो टी क्यूब का वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, राइट? सो P0 में टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3 और t की क्या है -3 और यहाँ पे 1. क्लियर? सेम फॉर P1 में टी क्यूब की वैल्यू क्या है 3, टी स्क्वायर की -6, टी की 6 और इसके लिए वैल्यू नहीं है तो 0. क्लियर? नेक्स्ट P2 की वैल्यू, सो P2 में क्या है -3 एंड 3 है, बाकी 0 है, और टी क्यूब में सिर्फ 1 है, बाकी 0 है. और दीज आर द पैरामीटर्स, दैट इज़ P0 to P3. क्लियर?
So this is nothing but P of t is equals to t, this is the t, multiplied by m base, that is the Bezier basic matrix, and G base, that is the Bezier geometric matrix. Clear? So this is the matrix representation of Bezier curve. This is very important for the to solve the example based on this Bezier curves. मैथमेटिकल एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है. टू सॉल्व दैट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ next we will see the limitation of this Bezier curve. So Bezier curve approximates the control points, so it cannot be used in application which require interpolating curve. हमने देखा है कि क्या होता है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट किया जाता है कंट्रोल पॉइंट्स को, इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे भी इंटरपोलेटिंग कर्व रिक्वायर है उस एप्लीकेशन में ये यूज़ नहीं होगा. अप्रोक्सीमेटिंग मीन्स व्हाट, जैसे कि P1 एंड P4 से ये डायरेक्टली जा रही है कर्व, लेकिन P2 एंड P3 को ये क्या कर रही है, अप्रोक्सीमेट कर रही है. क्लियर? नेक्स्ट, Bezier curve does not have local control, that is changing the position of one control point influences to the entire curve. What is the meaning of this? Local control नहीं है यहाँ पे, जैसे अभी हमने ये कर्व ड्रॉ की in between this 4 points, right? लेकिन अगर ये पॉइंट में अगर चेंज करती हूँ इसका लोकेशन, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी वो कर्व, राइट? द स्ट्रक्चर ऑफ द कर्व गेट्स चेंज, होल स्ट्रक्चर ऑफ द कर्व गेट्स चेंज. सो इट हैज़ द ग्लोबल कंट्रोल नॉट हैविंग द लोकल कंट्रोल. में सिर्फ पार्ट, एक ही पार्ट उसका चेंज नहीं होगा, पूरी कर्व चेंज होगी. क्लियर? सो Bezier curve does not have the local control, that is changing the position of one control point influences the entire curve. So degree of the curve depends on the number of control points, that is adding more control points increases the smoothness of the curve at the cost of processing higher degree polynomials. Clear? So these are the limitations of Bezier curve. So in next lecture we will see the example based on this.